चार्जर लगेगा तो इसका फोन तो हो गया। ये कौन सा वाईफाई? करूँ क्या? इस दोनों का चार्जर लगने वाला। हाँ बराबर आ गया ये भी, आई होप। हाँ अच्छा, उधर को ने क्या अलग किया क्या? अच्छा है, perfect. Online public, just type in a chat box if you can hear me. Let me check. मेरे को मोबाइल का भी चार्ज लगे, इसका भी चार्जिंग खत्म हो गया। नहीं है। ओके, यस, ओके, चलो। Let's proceed ahead with the last fast track lecture. We are covering up few lectures only. It's not. एक मिनट, अच्छा चालू नहीं हुआ क्या? Good morning, friends. Let us proceed ahead with the AS27, the last lecture on consolidation that we are doing. There are 3 lectures of consolidation that we did. This is third one. We did 21, we did 23, and now we are talking about AS27. Must standard है joint venture के ऊपर. Can expect a good question. Let me give you a background of the concept, and then we'll take up the questions also as well as provisions, everything. So, just a second. हाँ, JV का copy है, ठीक है. Understand करो. Many a times situation so arises that you lack capital or you lack a expertise to carry on a business. तो इसका AC थोड़ा कम करना. You lack a capital, you lack expertise to carry on a particular business, or you don't have enough resources available, maybe time, maybe assets, whatever. So resources are not available, expertise is not available, capital is not available, or risk will be too much if you go solo or on your own. So business enterprises look out for a partner, joint venture. Partner matlab a business enterprise is looking out for a partner, right? So when you look out for a partner, we are basically calling it as a, and you carry out the operations jointly. You carry out a joint controlled operations, or jointly, there is a joint control. You and that other partner both come together and exercise a joint control over the organization. When I use the word joint control, many students or many people start thinking that it should be 50-50. It is not necessary that for a joint control there has to be a 50-50 sharing of profit. Kyun? I have certain expertise, but I don't have a market access or a marketing capability. Somebody else has a marketing capability, but he doesn't have a expertise. So you can agree on a different profit sharing percentage, but you say that whatever decisions are to be taken, those decisions will be taken only if they are confirmed by other party. So joint control basically means you have a veto power. What word I used? Veto. So if I am a one partner or one party, and there is another party, let's say there is a party A and a party B, both of them come together and start a joint venture or a operation under joint control. A gets 60%, B gets 40%, 60-40 कर रहा है या 35-65 कर रहा है, जो भी परसेंटेज है प्रॉफिट का वो हो रहा है. Assets might be contributed in some different ratio also. That's absolutely okay. 35-65,
40-60 जो भी रेशो है, रेशो डिसाइड किया, लेकिन जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है? बी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन हिज ओन अलोन, इट नीड्स अप्रूवल बाय ए, और ए हैज अ authority to veto the decision of B, मतलब to knock down, to take down the decision of B. A के परमिशन के बिना B कुछ नहीं कर सकता, तो that is a joint control. So what is essential for a joint venture to be there? There must be a joint control of two parties, right? There has to be joint control of the two parties. And that joint control can come up even with the less than 50% voting power or less than 50% share of profits. ठीक है? This particular standard has classified this joint control under three structures, or there are three structures which are identified by the standard AS27, which we are doing. On your screen, joint control or a joint venture, you want to say, whatever you want to say, divided into three parts. Jointly controlled assets, sequence can be anything, jointly controlled assets, jointly controlled operations and jointly controlled entities. तीन पार्ट्स है, JCA, JCO, JCE. पहले अंडरस्टैंड कर लेना क्या है, मैं ब्रॉड आउटलाइन फिक्स करता हूं. अब मैं पहले जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट्स की बात कर रहा हूं. देयर इज अ असेट विच इज ओन्ड जॉइंटली. Income from the asset goes individually to individual person as per his share of ownership. So for example, there is a building to be constructed of 20,000 square feet. I say, okay, I will make 15,000, I want ownership of 15,000 square feet. Somebody else wants ownership of 5,000 square feet, और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग हम रेंट आउट कर लेंगे. जॉइंटली कंट्रोल्ड में रहेगा. जॉइंटली कंट्रोल मतलब किसको रेंट आउट पे देना है, ये डिसीजन जस्ट बिकॉज मेरा 15,000 है तो मैं मेरा 15,000 किसको भी रेंट पे दे दूं और 5,000 वो किसको भी रेंट पे दे, ऐसा नहीं. हम जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, हम दोनों मिलके डिसाइड करेंगे किसको रेंट पे देना है. मैं बोलता हूं एक्स को रेंट पे देना है, वो दूसरा वाला पार्टी बोलता नहीं वाई को रेंट पे देना है. नहीं, डिसीजन नहीं होगा. बिकॉज अगर मैं एक्स को बोलता हूं और मैं मेरा एरिया एक्स को देता हूं और वो उसका एरिया वाई को देता है, इट इज नॉट अ जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट. देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू बी एप्लीकेबल. जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट मतलब एक असेट है, कुड बी अ बिल्डिंग, कुड बी अ गैस पाइपलाइन शेयर्ड बिटवीन द टू एंटिटीज, कुड बी सम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बिटवीन टू एंटिटीज. लेट्स से टेलीकॉम के असेट्स है, टावर्स है. अब बीएसएनएल की हालत खराब है, वोडाफोन आइडिया की हालत खराब है, तो वो दोनों क्या करते हैं, वो अपना टावर शेयर करते हैं ताकि वो मुकेश भाई रिलायंस जियो के साथ थोड़ा कंपीट कर पाए. है पॉसिबल हो सकता है ना, जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट हो सकते हैं, बट डिसीजन जो भी होगा वो जॉइंटली लिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि ओके मेरा ओनरशिप 40% है तो 40% का मैं कुछ भी करूंगा, तेरा ओनरशिप 60% है तो 60% को तो कुछ भी करे, ऐसा नहीं है. जॉइंटली हम उस असेट को कैसे यूज करना है वो डिसाइड करेंगे. सो जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट, बच्चों इसमें कंसोलिडेशन या अकाउंटिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है. जॉइंट वेंचर JCA, JCA के अंदर क्या बोला मैंने, there is a asset which is owned jointly. Each party or each venturer or each investor, whatever word you want to use, venturer use करो या party use करो या investor use करो, party पसंद है party use करो. Each party will show only his share of asset in the balance sheet. Each party will show only his share of income from that asset in P&L. You are not carrying out any business. You are just owning an asset, and that asset is used by you for your own use, और उससे आपको कुछ इनकम मिल रहा है, रेंटल इनकम वगैरह कुछ मिल रहा है आपको. So आप कोई ऐसे बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो आपके P&L में क्या आएगा, उस असेट से जो इनकम आता है, only your share will be shown separately in your profit and loss account. Which profit and loss account? Standalone profit and loss account. यहां पर कोई कंसोलिडेशन का सवाल आता ही नहीं, क्योंकि स्टैंडअलोन में जो आया, स्टैंडअलोन से ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चला. बट यहां पे देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन व्हेन आई टॉक अबाउट JCA. मैं पहले JCA की बात कर रहा हूं. देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑल्सो. कुछ लीगल एंटिटी भी अलग नहीं है.
आप बोलेंगे लीगल एंटिटी अलग क्यों नहीं? यू कैन, कहां पे बोला है कि प्रॉपर्टी ओन करना है या कोई असेट ओन करना है तो उसके लिए अलग एंटिटी होना चाहिए? कांट देयर बी को ओनरशिप? दिस इज जॉइंटली कंट्रोल असेट इज नथिंग बट अ को ओनरशिप. इनकम टैक्स में भी आपने हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 26 किया होगा. हाउस प्रॉपर्टी कैन बी को ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस. सो इट्स बेसिकली को ओनरशिप मॉडल. तो लीगल एंटिटी भी अलग से फॉर्म करने का जरूरत नहीं है. ए और बी दोनों मिलके उस असेट को ओन करते हैं. अपना जो असेट में शेयर है, मैंने 50-50 नहीं बोला है कहीं पे भी. जॉइंट कंट्रोल डज नॉट मीन 50-50. अपना जो शेयर है अपने अपने बैलेंस शीट में दिखाओ. कौन से अपने अपने बैलेंस शीट में? स्टैंड अलोन. कंसोलिडेशन का कोई जरूरत ही नहीं है. फिर आप बोलेगा सर स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन पे कैसे आया? अरे रुक ना भैया, और है ना आगे जेसी है ना. तो देयर इज नो नीड ऑफ कंसोलिडेशन व्हेन इट इज अ JCA, बिकॉज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही तुम्हारा असेट आता है. उसके रिलेटेड अगर तुमने कोई लायबिलिटी या लोन उठाया तो तुम्हारे स्टैंड अलोन पे लोन दिखेगा. तुम्हारा कोई इनकम है तो तुम्हारे स्टैंड अलोन P&L में जाएगा. तुम कुछ खर्चा बेयर करना है तुमको, वो तुम्हारे स्टैंड अलोन P&L में खर्चा जाएगा. देयर इज नो नीड, बिकॉज देयर इज नो एंटिटी, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ को ओनरशिप. कंसोलिडेशन करूं तो किसके साथ? कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? मेरे खुद के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किसी और के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं. सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी में ये चीज था. कल अपना एसोसिएट में भी कंसोलिडेशन होता है, लेकिन वो कंसोलिडेशन थोड़ा अलग था. वो सिर्फ अपना जो ओनरशिप था उतना ओनरशिप ही सिर्फ हमने नेट इनकम का डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था. हमने लाइन बाय लाइन हमने नहीं किया था. कहां पर लाइन बाय लाइन नहीं किया था? एसोसिएट केस में. यहां पर जो जॉइंट वेंचर की बात कर रहा हूं उसमें 3 पार्ट्स है. एक जगह पे कंसोलिडेशन आएगा, 2 जगह पे नहीं आएगा. जेसीए की बात कर रहा हूं. जेसीए में कंसोलिडेशन का कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि को ओनरशिप ऑफ असेट्स है. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड को ओनरशिप ऑफ असेट. ठीक है, थैंक यू. अब दूसरा ओनरशिप समझ गया तुमको? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन. इसमें भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तुमने फॉर्म नहीं की है, बट यहां पे बिजनेस कर रहे हो. जेसीए और जेसीओ में फर्क ही इतना है. जेसीए में आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप एक असेट को ओन कर रहे हो और असेट से आप रेंटल इनकम या मे बी डिविडेंड इनकम और मे बी सम बिजनेस इनकम यू आर ट्राइंग टू डिराइव. यू आर ट्राइंग टू यूज दैट असेट. और वो असेट आप म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कौन कितना यूज करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एक गैस का पाइपलाइन है. देयर इज अ पेट्रोनेट LNG एंड लेट्स से देयर इज अ गुजरात गैस. ऐसे 2 कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है. तो गैस का पाइपलाइन पेट्रोनेट LNG और गुजरात गैस दोनों ने मिलके सेटअप कर लिया. लिक्विड या MNGL ले लो महाराष्ट्र में, तो MNGL या ऐसे बहुत सारे कंपनीज है. एवरी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपको मालूम है. तो चलो महाराष्ट्र में तो यहाँ या स्पेशली पुणे सिटी में तो एक ही है मेजर. नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नॉर्मली MNGL ही ज्यादा ऑपरेटेड. कहीं पे लेट्स अज्यूम कि एक ही सिटी में गैस का पाइपलाइन है, लेकिन वो गैस का पाइपलाइन के लिए अज्यूम करो कि कुछ रिसोर्सेस है जो 2 कंपनी शेयर कर रहे हैं. तो वो रिसोर्सेस आप शेयर कर रहे हो, उससे जो इनकम आएगा वो आपके इंडिविजुअल P&L में, आपका जो शेयर ऑफ इनकम है आपके इंडिविजुअल P&L में आएगा. उसका जो शेयर ऑफ इनकम है वो उसके P&L में चला जाएगा. वो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से, कोई आपने अलग एंटिटी फॉर्म नहीं की है कहीं. प्लीज रिमेंबर, असेट कैन अ फ्लैट बी ओन्ड बाय हस्बैंड वाइफ टुगेदर? ऐसा जरूरी है क्या? हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव टू बाय अ फ्लैट. फर्स्ट हस्बैंड वाइफ शुड कम टुगेदर, दे शुड फॉर्म सम कंपनी और दे शुड फॉर्म सम पार्टनरशिप फर्म और LLP एंड दैट LLP शुड बाय द फ्लैट बिकॉज देयर शुड बी ओनली 1 ओनर ऑफ फ्लैट. ऐसा कहीं नहीं लिखा. कैन देयर बी 5 ओनर्स? यस. सो इट्स अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ असेट. और बिजनेस नहीं कर रहा है वो जो जॉइंट वेंचर है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है. जॉइंटली यू आर कमिंग टुगेदर. जेसीए में आप बिजनेस जॉइंटली नहीं कर रहे, बिजनेस आप इंडिविजुअली कर रहे हैं उस असेट को यूज करके. वो असेट का यूज करके तुम्हारा इंडिविजुअल बिजनेस चल रहा है. जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन में आप जॉइंटली आके बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं कर रहे हो. बट इट्स लाइक एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी विच इज फॉर्म्ड. हाँ, बट इनकम टैक्स के लिए आई होप यू नो, इवन इफ यू डू अ AOP is treated as a separate legal person for income tax calculations. अगर आपने, मैं पर्पसफुली लिंक करना चाह रहा हूं, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन. जॉइंटली कंट्रोल असेट में एग्जांपल करिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया, पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन आ गया, टेलीकॉम के टावर्स आ गए. ये जॉइंटली कंट्रोल असेट जो होते हैं ना, मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या जो कैपिटल हेवी असेट्स होते हैं वहां पर ये कैरी आउट किए जाते हैं. जॉइंटली कंट्रोल्ड
असेट्स, उससे कोई आपको बिजनेस करना नहीं है, वो असेट है। फिर असेट का यूज कौन कितना करेगा, क्या रेशो में करेगा, वो तुम्हारा एग्रीमेंट का भाग है। वो तुम एग्रीमेंट में बोलो कि ये असेट इतना टाइम तक ये यूज करेगा, या उस असेट से जो इनकम आएगा वो इनकम इसको इतना जाएगा, उसको इतना जाएगा, इनकम विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, समथिंग लाइक दैट। या आपने वाटर का पाइपलाइन ले लिया, लेट्स से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और बाजू में पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और बाहर से कोई वाटर का पाइपलाइन है। आप चलो, आप बोले सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, उनका प्लांट आजू बाजू में, इधर इसका प्लांट है, इधर इसका प्लांट है, और उधर क्या है, उधर नदी है, उधर से पानी लेके आना है। अब हर एक ने अलग अलग पाइपलाइन डाला तो खर्चा दोनों का भी ज्यादा आएगा, तो दोनों साथ में आते हैं। चलो हम क्या करते हैं, जॉइंटली एक पाइपलाइन डालते हैं, उस पानी से, पाइपलाइन से जो पानी आएगा 8 आवर्स के लिए तुम यूज करो, 12 आवर्स के लिए तुम यूज करो, या जो भी तुम डिसाइड करो। तो असेट आ गया। तो वहां पर जॉइंट वेंचर में, जॉइंटली कंट्रोल असेट में अलग से कोई बिजनेस चल रहा है क्या? नहीं, वो असेट तुमने कंस्ट्रक्ट की, तुम्हारा जो ओनरशिप रहेगा असेट का, उसके लिए तुम कंट्रीब्यूट करोगे उतना पैसा। जो भी रेशो तुम्हारा, एग्रीमेंट कैन बी एनीथिंग, 50-50 नहीं बोला मैंने। तुम पाइपलाइन का खर्चा करो, उसमें तुम्हारा जो शेयर है तुम कंट्रीब्यूट कर, तुम्हारे बैलेंस शीट में तुम्हारा शेयर देखेगा। पानी यूज करके जो तुम्हारा इनकम आ रहा है, उससे जो भी तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका इनकम तुम्हारे स्टैंडअलोन पी&एल में आएगा। कंसोलिडेशन का सवाल ही नहीं है। हाँ, जस्ट आपको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में whenever you have a partial ownership of the asset, you have to show that separately in your notes to accounts. Notes to accounts पे जब आप tangible assets लिखोगे, if you have partial ownership of asset, you should show that is JCA. I hope everyone understood JCA. अब मैं बात कर रहा हूं JCO का. In case of a JCO, you are coming together, but you are not forming a legal entity. हाँ बोल रहे क्यों नहीं करना है उनको, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट फॉर्मिंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों अपना अपना शेयर जो है अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी इनकम आता है वो इनकम कोई तो एक पार्टी रिसीव करेगा, या इनकम को भी हम स्प्लिट करेंगे, एक्सपेंसेस को भी स्प्लिट करेंगे। अगर गलती से इनकम एक के अकाउंट में आ गया तो उसमें से वो खुद का शेयर उसके पास रखेगा, दूसरे का शेयर दूसरे को ट्रांसफर करेगा या पेएबल दिखाएगा, या खुद तुमने पूरे एक्सपेंसेस इंकर कर लिए तो तुम दूसरे पार्टी से एक्सपेंसेस रिसीवेबल दिखाओगे। कुछ समझा गया? दैट इज अ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यहां पर भी क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन डज नॉट अराइज, बिकॉज दैट जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन जो है उसका अलग कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इनकम टैक्स के लिए हो सकता है, बिकॉज इनकम टैक्स इज डिफरेंट, वी आर नॉट लर्निंग इनकम टैक्स हियर, वी आर लर्निंग व्हाट, अकाउंटिंग। तो अपना जो शेयर है वो ऑपरेशन में, अपना शेयर ऑफ असेट, अपना शेयर ऑफ लाइबिलिटी, अपना शेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस वी विल शो इन आवर स्टैंड अलोन P&L। द क्वेश्चन ऑफ डूइंग अ कंसोलिडेशन डज नॉट अराइज, क्योंकि लीगल एंटिटी नहीं है यार दोनों केसेस में। JCA JCO में सब कुछ अपना शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टैंड अलोन में ही आता है। सो क्वेश्चन ऑफ डूइंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट अराइज। द क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन डिड अराइज इन केस ऑफ अ सब्सिडियरी, बिकॉज सब्सिडियरी वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सब्सिडियरी एक अलग लीगल एंटिटी था ना। तो होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिख रहा था, सब्सिडरी के अलग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे। सेम चीज AS23 में भी हुआ था। तुम एक इन्वेस्टर थे, तुम्हारे बैलेंस शीट में, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और फिर एसोसिएट का अलग बैलेंस शीट बनता था, अलग P&L बनता था। तो फिर उसमें से अपना शेयर जो है वो हमें स्टैंड अलोन में तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब JCA और JCO में लीगल एंटिटी ही अलग नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन डज नॉट अराइज। टेल मी, लिसन वेरी केयरफुली। In case of a holding subsidiary, we did 100% consolidation. We did what? 100% consolidation. Why? सब कुछ हमने ले लिया और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाया था। हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाया था। एसोसिएट के केस में हमने क्या किया? अपना जितना शेयर था उतना ही हमने शेयर लिया, लेकिन लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं किया। अपना शेयर का डायरेक्ट रिजल्ट लिखा। अब यहां पर
प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा थर्ड टाइप के लिए। थर्ड टाइप कौन सा है? ऑन योर स्क्रीन जॉइंट वेंचर, जेसीए, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर्स, बिल्डिंग आ गया। जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, दोनों मिलके आके बिल्डिंग बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके यूज नहीं करने वाले, उसको बेचने वाले, बिजनेस है। हम बिल्डिंग ओन नहीं करने वाले, हम टेम्परली ओन करके वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके हम बेचने वाले। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, उसमें अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अपना जो शेयर ऑफ लॉस है, वो रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल में, अपने शेयर ऑफ असेट लायबिलिटीज हम बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। कंसोलिडेशन का सवाल है ही नहीं। थर्ड पार्ट में कंसोलिडेशन आएगा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। इन केस ऑफ अ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, इन केस ऑफ अ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सेपरेट लीगल एंटिटी है? एक जो जॉइंट वेंचर है, वो जॉइंट वेंचर क्या है? अलग लीगल एंटिटी है ना। जॉइंट वेंचर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जॉइंट वेंचर को क्या करना पड़ेगा? आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा उसका अलग से। तो कैसे कंसोलिडेशन करेगा? यहां पर हम फॉलो करने वाले हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। क्या होगा ये प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में? जो अपना शेयर ऑफ ओनरशिप है उतने ही, या अपना जो स्टेक है इनकम और एक्सपेंसेस में, उतने इनकम एक्सपेंसेस हम लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे, लाइक AS21। बट देयर इज अ डिफरेंस। AS21 में हमने लाइन बाय लाइन किया था, लेकिन 100% किया था, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा था नीचे। प्रॉफिट में भी हम नीचे लिखते, कल मैंने आपको NSE का दिखाया था, प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को वहां पर उन्होंने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला था, नेम कैन बी एनीथिंग। तो AS21 में जैसे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होता, वैसे यहां पर भी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होगा फॉर JCE, बट व्हाट? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब अपना जितना ओनरशिप है या अपना जितना स्टेक है उसमें उतना ही हम खींच के इधर ऐड करेंगे, बाकी का ऐड नहीं करेंगे। और गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, बिकॉज इसमें हमने एक्वायर नहीं किया, हमने ही उसको क्रिएट किया है। जॉइंट वेंचर का हम ही वेंचरर है, हमने ही उस वेंचर को शुरू किया है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेइंग फॉर गुडविल और कैपिटल रिजर्व हियर, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इट ना। तो जो जॉइंट वेंचर के लिए जितना पैसा चाहिए, उस पैसे में अपना जो शेयर है वो हमने कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया, किसी दूसरे ने शेयर कंट्रीब्यूट किया। गुडविल कहां से आया? गुडविल आया नहीं, क्योंकि जो असेट्स का जरूरत था उतना ही हमने असेट्स क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन ऑफ गुडविल अरोज इन केस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी, बिकॉज होल्डिंग कंपनी अक्वायर्ड द स्टेक इन अ सब्सिडरी फ्रॉम समवन एल्स, दैट इज आवर अजम्पशन। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी स्क्रैच से शुरू किया तो होल्डिंग सब्सिडरी के केस में भी गुडविल नहीं आएगा। AS21 में क्या गुडविल हमारे क्वेश्चंस में आता था? इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में हर बार गुडविल आना ही चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर होल्डिंग कंपनी है, उसने स्क्रैच से सब्सिडरी शुरू किया, स्क्रैच से मतलब किसी और का कंपनी एक्वायर नहीं किया, खुद ही शुरू कर दिया तुमने। 100% सब्सिडरी या 80 तुमने शुरू किया, उसी टाइम पे तुमने 80% तुम्हारे पास रखा और 20% किसी और को दिया, लेकिन ज्वाइंट कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल तुम्हारे पास है। ज्वाइंट कंट्रोल आ गया, 80-20 में भी ज्वाइंट कंट्रोल हो सकता है कि 20 वाले को तुमने अगर वीटो दे दिया तो कोई देगा नहीं ऐसा, कोई मतलब इतनी बड़ी मूर्खता कोई करेगा नहीं कि 80% मेरे पास ओनरशिप, 80% असेट्स मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, कैपिटल 80% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन डिसीजन तू ले, मतलब तू नहीं, ज्वाइंटली ले। कोई ऐसी मतलब दैट इज इलिटरेसी, एजुकेटेड इलिटरेसी। यू विल नॉट फाइंड आउट एनी बिजनेसमैन डूइंग दिस। हाँ 50-50 आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा चलो 40-60 आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत, बट तुम 20% वाले को कंट्रोल दे रहे हो, मतलब भाई साहब तुम मानो। लिसन अप। तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। ये सारी चीजें अभी इस स्टैंडर्ड में हमें लर्न करनी है। कुछ थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस जो है, इस ये जो चीज था पहले सीए फाउंडेशन में था, फॉर योर इंफॉर्मेशन। इधर उधर मतलब हम खेला हम बहुत खेले। तो उसके ऊपर का ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है, पुराने एग्जाम्स में जो आता था फाउंडेशन में 2018 के 18 या 19 में, कहीं तो डिलीट हुआ था, आई डोंट रिकलेक्ट एग्जैक्ट हियर, क्योंकि इतनी बार सिलेबस इधर से उधर गया है ना।
हमने ये जब सीखा था तब हमने फाइनल में सीखा था, जब सिखाना चालू किया तो सीपीटी में आया था, अभी वापस इंटर में आ चुका है, तो हमने बहुत सारा खेला खेल चुके हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले, ये क्या आ गया, हाँ देखो, लेट मी ब्रिंग अप ऑन स्क्रीन नोट्स अपने है वो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। AS27 applicability and enterprise that presents, ICAI का मॉड्यूल भी देना, तो जैसे ऐसे मैं वहां पे क्वेश्चन आया तो कुछ ले लूंगा। एनीवन, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है किसी के पास? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को आपने गो थ्रू करना चाहिए, स्पेशली फॉर दीज न्यू स्टैंडर्ड्स। सो जो है वो अपने कंप्लीटली करने चाहिए। चलो देखते हैं। An enterprise that presents a consolidated financial statement should account for interest, financial interest in a joint venture in the consolidated financial statements as per AS27. The question of consolidated financial statement arises not for all the types of joint ventures. AS27 में 3 टाइप के जॉइंट वेंचर्स है, उसमें से 2 जो है वो ऑलरेडी स्टैंड अलोन में ही आते हैं, और एक जो है वो सिर्फ सेपरेट एंटिटी रहता है, JCE, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। इट इज इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, डेफिनेशंस। जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर इज एन अरेंजमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ जॉइंट कंट्रोल। देयर शुड बी जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल समझा तुमको? वेरी गुड। सो द कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम AS21। AS21 में कंट्रोल के लिए 50% का कंडीशन था, यहां पर 50% का कंडीशन नहीं है। मैंने अभी आपको शो दिया 20% के साथ भी कंट्रोल, थोड़ा ज्यादा हो गया, 45% के साथ भी कंट्रोल आ सकता है आपको, बिकॉज इफ यू गॉट अ वेटो पावर। वेटो मतलब यू कैन टर्न डाउन और नॉक डाउन और कैंसल और नलीफाई द डिसीजन ऑफ अदर पार्टी, उसको बोलते हैं वेटो। तुम्हारे घर में तुमको वेटो है क्या? नहीं। तुम्हारे माँ बाप के पास वेटो है क्या? हाँ। मतलब तुम्हारे माँ बाप ने जो डिसीजन लिया तुम उसको नॉक डाउन नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने जो डिसीजन लिया that can be knocked down by your parents। तो अगर अपनी इज्जत बढ़ानी है तो पास हो जाओ, अगले साल जब खुद कमाओगे और पॉकेट मनी के लिए पापा पॉकेट मनी वो नहीं मांगोगे, तब थोड़ा तुम्हारा इज्जत बढ़ सकता है। तो इज्जत बढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। इन्वेस्टर, venturer is a party to a joint venture and has a joint control over that joint venture। Very good। An investor is a party to joint venture having a control। The venturer, investor, they are used synonymously। So, but the word, the difference is there। venturer में उसके पास control है, investor जो है उसके पास control नहीं है। That's the only difference। So, an party to a joint venture not having a control over the joint venture। तो अगर आपके पास control है ही नहीं, तो it may be associate for you। For then investor, like for example, you have 30% ownership in some entity, but you don't have a control over it, joint control नहीं है, तो आप investor कहलाओगे। अगर आपके पास control है तो आप venturer कहलाओगे। The only difference between venturer and investor is venturer has a joint control, investor does not have joint control। Investor does not have joint। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, व्हाट वाज इट, कब आता है रे? हर JCA में आता है, JCO में आता है, किधर आता है ये? JCE में आता है। क्यों आता है JCE में? क्योंकि उधर सेपरेट लीगल एंटिटी है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पर है। क्या है मॉडल में है, कुछ दिया है। फॉर्म्स ऑफ जेसी, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कब आएगा? JCE में। लाइन बाय लाइन है ये, एसोसिएट के जैसे नहीं। एसोसिएट में लाइन बाय लाइन नहीं था, एसोसिएट में नेट रिजल्ट हमने दिखाया था बस, यहां पे नेट रिजल्ट नहीं दिखाना है। और एसोसिएट में हमने असेट्स इंडिविजुअली, लायबिलिटीज इंडिविजुअली ऐड नहीं किया था। हमने जो इन्वेस्टमेंट था, नेट कैरिंग असेट, डायरेक्ट हमने नेट अमाउंट लिखा था। अगर आपको याद है, नेट अमाउंट ऑफ असेट्स, नेट असेट्स का कैरिंग अमाउंट लिखते थे ना हम एसोसिएट के केस में। एसोसिएट के केस में हमने नेट अमाउंट ऑफ कैरिंग नेट असेट्स लिखा था, और कैरिंग असेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज।
A method of accounting whereby venturer, I did not use investor. Investor के पास कंट्रोल नहीं है. A venturer share of each of the assets, liabilities, income and expenses. Each asset, liability, income, expense. Result बोला क्या? तो तीनों स्टैंडर्ड तुम्हारे ऐसे आंखों के सामने आ गए क्या? Jointly controlled entity is shown as a separate line item in the venturer's financial statement. मतलब it is not on the face of the P&L balance sheet है. ये जो separate line item है वो notes to account में रहता है. Notes to account is also financial statement. तो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट पे देखो ना, बिल्डिंग, अपना बिल्डिंग और जॉइंट वेंचर का बिल्डिंग अलग नहीं दिखा है सर. बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते. ओके, ये आएगा कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में, तो तुम्हारा खुद का बिल्डिंग रहेगा. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तुम्हारा बिल्डिंग प्लस जॉइंट वेंचर के बिल्डिंग में तुम्हारा जो शेयर है वो ऐड होगा, प्रोपोर्शनेट. सब्सिडरी में क्या होता था, पूरा का पूरा बिल्डिंग ऐड होता था और बाकी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखता था लायबिलिटी में. इधर क्या करेंगे हम, बिल्डिंग डैश आवर ओन बिल्डिंग एंड जॉइंट वेंचर्स और आवर शेयर इन जॉइंट वेंचर्स बिल्डिंग. अभी वर्ड क्या यूज करना है तुमको नोट्स अकाउंट में, तुम तुम्हारा देख लो, या तुमको अलग से एक उसका स्टेटमेंट. कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड बिल्डिंग में डिस्क्लोजर दे माइट नॉट शो, दे माइट शो द सेपरेट स्टेटमेंट बिलो. ये अबाउट अमाउंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड फॉलोइंग: jointly controlled operations, jointly controlled asset, jointly controlled entities. Common characteristics: venturers / investors are bound by contractual arrangement. Investor के पास कंट्रोल नहीं है. सिर्फ इन्वेस्टर के केस में क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन does not arise under this standard. It might be there under AS23 if he has got a significant influence. AS21 में तो सवाल आता नहीं, उसको इन्वेस्टर बोलते नहीं, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं. तो इन्वेस्टर will not get covered for a consolidation under 27. He might get covered under contractual arrangement establishes a joint control. Joint control दोनों के पास नहीं है, सिर्फ वेंचरर के पास है. अभी वापस नहीं बोलेगा. Jointly controlled operation मतलब देखो, in this form venturers combine their operations, resources, expertise, but legal entity form किया गया. They produce, market and distribute jointly a particular product. Each venturer bears his own costs and takes his own share of revenue from the sale of product. तो उसके इंडिविजुअल P&L में वो अपना अपना शेयर दिखाता है, बस स्टैंड अलोन P&L में दिखाता है. दैट्स व्हाई कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है. Recognition in separate and consolidated financial statement. The assets it controls and liabilities it incurs. स्टैंड अलोन में भी जाता है वो assets, और कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन कब लगेगा, अगर तुम्हारे पास सब्सिडरी है. अब बोले सर जेसीओ में कंसोलिडेशन क्यों लिखा, अरे तुम्हारे पास जेसीओ है लेकिन तुम्हारे पास सब्सिडरी भी हो सकता है ना. तो सब्सिडरी है और उसके लिए तुम सीएफएस बना रहे हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें तुम्हारा जॉइंट वेंचर का असेट्स भी दिखेगा. बट तुम्हारे पास सब्सिडरी भी नहीं है, तुम्हारे पास एसोसिएट भी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ जेसीओ है. देयर इज नो क्वेश्चन और देयर इज नो नीड फॉर consolidated financial statement. लिखने का, if a business entity does not have subsidiary or associate but has only JCO/JCE but has only JCO/JCA. ई बोला क्या मैंने गलती से, JCO/JCA but has only JCO/JCA. There is no need of consolidation. JCE में क्या होता है, आपके स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट दिखता है, तो इन्वेस्टमेंट को नॉक ऑफ करके कंसोलिडेशन, आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्पेक्टिव असेट और रिस्पेक्टिव लायबिलिटी देना पड़ेगा. जेसीओ और जेसीए बोला मैंने, जेसीई है आपके पास सिर्फ, देन यू नीड टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आपके स्टैंड अलोन में क्या आता है, सिर्फ स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट दिखेगा. बट जेसीओ और जेसीए में इन्वेस्टमेंट दिखता ही नहीं, क्योंकि अलग एंटिटी है ही नहीं ना, अलग एंटिटी. जेसीई में क्या होता है, अलग एंटिटी होता है, उस एंटिटी में आपने जो पैसा लगाया उसका शेयर कैपिटल आपने सब्सक्राइब किया होगा, या उसका पार्टनरशिप का कैपिटल आपने सब्सक्राइब किया होगा.
तो JCE कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, कोई नॉर्मली इट विल बी कंपनी. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ओन ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग जॉइंट वेंचर, दैट इज JCO. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ तो दोनों आके क्या कर रहे हैं, कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, हो गया. जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया. जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट वापस एक्सप्लेन किया है. सो यू रिकॉर्ड व्हाट, recording relating joint venture transaction in the books of each venturer. तुम्हारा एक गैस पाइपलाइन का एग्जांपल आया. जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, एंटिटी में क्या होगा बच्चों, एंटिटी में कंसोलिडेशन होगा. JCO में तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस आएगा, और गलती से तुमको इनकम ज्यादा आ गया, मतलब तुमने रिसीव किया, तुम्हें पूरा का पूरा सेल्स का अमाउंट रिसीव किया JCO में, तो क्या करो, डोंट रिकॉर्ड एंटायर सेल्स अमाउंट जस्ट बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इट. तुमने रिसीव किया ज्यादा, लेकिन उसमें तुम्हारा शेयर कितना है उतना ही दिखाओ. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. JCE देखो, दिस फॉर्म इन्वॉल्व्स सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट एंटिटी विल ओन असेट्स, लायबिलिटीज एंड अर्न इनकम एक्सपेंसेस. इनकम एक्सपेंस तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, वो एंटिटी के बुक्स में जा रहा है, उसका लीगल एंटिटी अलग है. Jointly controlled entity prepares and presents its own financial statements. Each venturer is entitled to share of results, profit share. You are entitled to share of result, but in accounting we don't show result directly. In accounting you do line by line consolidation on a pro rata basis. So is it like AS21? Yes. There are some similarities. There are some differences. Like bola maine, I did not say is it exactly same. So it is, consolidation is like here AS21, but the difference is वहां पर 100% था AS21 में, यहां पर proportionate है, pro rata है, समझा ना. So each venturer is entitled to a result, share the result of an entity. Recognition in the separate financial statements आप करोगे. Interest in the joint venture should be accounted as investment in accordance with AS13 in a separate financial statement. Separate में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट AS13 के हिसाब से दिखाओगे. मैं वेंचरर हूं, मेरे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर. रिकॉग्निशन इन अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगा, और वो जो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है, उस एंटिटी में अपना जो शेयर है उसका इनकम item by item, expenses item by item, interest of financial interest should be accounted as per proportionate consolidation method. Consolidated balance sheet of the venturer to include his share of asset, his share of liabilities on line by line, same income and expenses. In case venturer ceases to have a jointly controlled, ceases to have a joint control in the entity, तुम्हारा कंट्रोल चला गया, जॉइंट कंट्रोल चला गया, तुमने गिव अप कर दिया कंट्रोल, देन प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन शुड नॉट बी फॉलोड ऑब्वियसली. देन यू शुड शो ओनली इन्वेस्टमेंट एज पर AS13. अगर इन्वेस्टमेंट रहा है, तुमने कंट्रोल छोड़ दिया, तो शो द इन्वेस्टमेंट इन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS13. ऐसा भी हो सकता है तुम वेंचरर थे, वेंचरर से तुम्हारा डाउनग्रेड हो गया स्टेटस, और डाउनग्रेड होकर तुम इन्वेस्टर बन गए. तो इन्वेस्टर बन गए तो क्या होगा, AS13 तुम्हारे स्टैंडअलोन में अप्लाई करो. अगर तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो 23 में जाओ, सब्सिडरी का तो सवाल आता ही नहीं है. नेक्स्ट, सो मेंटेनिंग देयर इज सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर जॉइंट वेंचर एंड देन यू डू द कंसोलिडेशन. तो वहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मोना सोना जॉइंट वेंचर. तो यहां पर आंसर नहीं, तो हम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कर लेंगे. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन. ये सारे एक्सप्लेन हो गए. ट्रांजैक्शंस बिटवीन वेंचरर एंड जॉइंट वेंचर, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस. वापस ओइंग चालू कर रहा था आज कोई, तो कौन था रे ओइंग? हाँ, ट्रांजैक्शन लिखा, इंटर कंपनी ओइंग अलग होता है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं. तो वो ट्रांजैक्शंस का क्या करने का पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट. ये है, देन विल गो थ्रू द एग्जांपल्स. और यहां पर मैंने समरी पॉइंट दिया, बस खत्म हो गया स्टैंडर्ड. अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब देयर आर गुड क्वेश्चंस गिवन इन. बहुत तुमने अगर कंसेप्ट तुमको समझ गया तो क्वेश्चंस आर लॉलीपॉप. तो ये समरी पॉइंट्स दिए मैंने यहां पर. देखो, AS27 इज कंसिडर्ड द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर. ट्रांजैक्शंस करेंगे हम, ट्रांजैक्शंस को आया नहीं मैं.
हाँ, AS23 में मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट वो एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मॉड्यूल में दिया ही नहीं है। वो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में शायद एक्सप्लेन किया, तब मॉड्यूल देखा नहीं होगा। अभी कल फॉर्चुनेटली मॉड्यूल था, तो मैंने वो AS23 में अनरियलाइज प्रॉफिट कैन बी देयर, दैट इज नॉट गिवन इन द स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट। AS21 में दिया था, वो तो मैंने भी सिखाया था, अपस्ट्रीम एंड। AS23 में सिखाया नहीं, इधर 27 में इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन सिखाने वाला हूं। समरी देखना। A joint venture is a contractual arrangement. In order to qualify the joint venture, they must have joint control. Very good. It can be in the 3 forms. Very good. Summary अब ऐसा ही है। हाँ, ये लाइन अच्छा है। In order to disclose jointly controlled entity, proportionate consolidation method is used. Jointly controlled entity बोला सिर्फ, मैंने joint venture नहीं बोला। The goodwill or a capital reserve as a result of proportionate consolidation method should be shown in consolidated financial statement। अब बोलेगे सर गुडविल कहां से आएगा? अभी आपने बोला था नहीं आएगा। अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो नहीं आएगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर था, ए और बी के बीच में वेंचर था, उसमें से ए एग्जिट हो रहा है और तुम सी हो, यू आर एंटरिंग इन दैट जॉइंट वेंचर इन प्लेस ऑफ ए। ए क्या तुमको बुक वैल्यू पे बेचेगा बिजनेस? ए विल चार्ज अ गुडविल। और अगर स्ट्रेस में है तो कैपिटल। हाँ, अगर तुम स्क्रैच मतलब जॉइंट वेंचर फॉर्म होने से डे 1 से हो तो गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आता, ऐसा बोला था मैंने ये नहीं बोला कि गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा ही नहीं। क्या आ सकता है गुडविल कैपिटल रिजर्व? यस, आ सकता है, लेकिन नॉर्मली आता नहीं है। नॉर्मली जॉइंट वेंचर में ऐसे पार्टनर जो होते हैं बदलते नहीं है। क्यों? पहले ए और बी का रिश्ता था, ए चला जा रहा है, ए के जगह पे सी आ रहा है, क्या गारंटी बी का सी के साथ जमेगा? ए और बी का जो फाइन ट्यूनिंग था, मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी जोड़ियां बना रहे हैं यार। तो नॉर्मली जॉइंट वेंचर में क्या रहता है मालूम है क्या? ए और बी ने जॉइंट वेंचर फॉर्म कर लिया, ए को एग्जिट करना है जॉइंट वेंचर से, तो ए उसके शेयर सी को बेचता है। ये ऐसा होता नहीं कभी। नॉर्मली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ROFR। ये रियल लाइफ है, अपना सीए कोर्स में नहीं है। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। अगर किसी एक वेंचरर को बिजनेस से एग्जिट करना है, ही कैनॉट ब्रिंग एन आउटसाइडर, क्योंकि दैट विल बी फोर्स टू द अदर वेंचरर। तो ही हैज टू गिव ऑफर टू द अदर वेंचरर फर्स्ट। अदर वेंचरर हैज अ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ही विल से नहीं, मेरे को तेरा स्टेक नहीं खरीदना है, तू बेच दे अभी किसी और को। फिर नया वेंचरर आएगा, बाउंसर। ए और बी क्या है? वेंचरर्स है, उन्होंने जेवी कर लिया, अलग एंटिटी फॉर्म कर लिया। ए को एग्जिट करना है या बी को एग्जिट करना है, दोनों के पास, दोनों को क्या करना है? आउटसाइडर को पहले नहीं लाना है। बोथ आउट, एनीवन हु वांट्स टू एग्जिट ही शुड गिव ऑफर टू अदर पार्टी। अब बोले सो दोनों को एक साथ एग्जिट करना है, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं, फिर तुम नया वायर ढूंढ लो। एक को एग्जिट करना है, ही शुड गिव ऑफर टू अदर पार्टी। तो बोले राइट शेयर के जैसा हो गया। ये राइट शेयर नहीं है, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, इट्स अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट। हमारे सीए कोर्स में ना शेयर होल्डर एग्रीमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड द शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट, कंपनी इज नॉट अ पार्टी टू इट। कंपनी कैन बी मेड अ पार्टी इफ यू वांट, बट ये शेयर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट है। कंपनी अलग है, ए बी का जॉइंट वेंचर अलग है। लेट मी गिव अ क्लासिक एग्जांपल, टाटा डोकोमो। Docomo, when it wanted to exit from the Indian business, Docomo could not sell its stake to Vodafone or maybe something like Virgin Airlines, Virgin Mobile. Virgin Airlines भी है उनका, Virgin Mobile भी है। वो ऐसा बेच नहीं पाया डोकोमो। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि टाटा के पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल था। समझा? तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि अगर आपने, यू बिकम अ वेंचर नॉट फ्रॉम द स्क्रैच, बट यू अक्वायर्ड द स्टेक इन अ जॉइंट वेंचर फ्रॉम समवन एल्स। In case accounting policies of the venturer and the jointly controlled entity are not same, appropriate adjustment should be made in the financial statements, obviously. Transaction of sale and a purchase of assets between the venturer and the joint venture should be accounted as per AS27। अभी हमने वो नहीं किया, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन अभी तक मैंने। ऑपरेटर और मैनेजर ऑफ जॉइंट वेंचर में बी पेड सर्टन फीस, ठीक है, दैट विल बी एक्सपेंस ऑफ अ जॉइंट वेंचर। अगर आपने कोई मैनेजर अपॉइंट किया तो डिस्क्लोजर्स यू शुड डिस्क्लोज। देखो यहाँ पे मैं एक समरी दिया है और फिर नीचे एक कंबाइंड क्वेश्चन भी दिया है मैंने। जरूरत नहीं है कंबाइंड क्वेश्चन, आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, नॉट रिक्वायर्ड, आएगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर
show as per AS13 in your individual financial statements. Holding company or investment in a subsidiary company, then AS21 आएगा. Holding and investment in associate, 21 and 23 आएगा. You are a holding company, you have investment in a joint venture, separately entity की बात कर रहा हूं मैं, 21 and 27 आएगा. You are a holding company, you have investment in क्या बेसिक है, कुछ भी बकवास है. ये कंबाइन का क्वेश्चन आएगा नहीं. तो अभी हम क्या करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको गो थ्रू करते हैं. यूनिट नंबर क्या था ये, 3. तो इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर ना कुछ थियरी क्वेश्चंस भी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है. थियरी मतलब बेसिकली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, वो पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर और समथिंग लाइक दैट. तो आपको थियरी लॉजिकली नहीं पूछना चाहिए यार, और बहुत ऑलरेडी तुम्हारे पास थियरी सब्जेक्ट्स है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स है, उसके एडिशन में इसमें भी डाल दिया, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. आ गया तो ठीक है, लिखने का कुछ तो. IDBI gave a loan to joint venture entity of L&T and Tantia Construction. They have signed an agreement according to which IDBI will be informed about all the important decisions of the joint venture entity. The agreement is to protect the right of IDBI. Hence, signing of the contractual arrangement will not make IDBI to be an investor. IDBI is giving a loan because they are not having exercise any control or influence. Loan दे रहे, लोन देने वाला आदमी इन्वेस्टर नहीं कह सकते आप उसको. Investor means he should have equity ownership and he should have some significant influence, stake ownership. IDBI loan दिया है रे. X invested 200 crores in initial capital along with Y and Z in GFH. तो ये joint contractual arrangement का example institute explain कर रहा है. वो joint venture है या नहीं है. IDBI was not a party to joint venture here. With Y and Z in GFH Limited, X ने 200 crores लगाया along with whom, Y as well as Z. तो कितने लोग ने पैसा लगाया, X, Y, Z. The purpose of X is making this investment is to grow the business of GFH Limited along with एक मिनट, X invested 200 crore along with Y and Z in GFH. Oh, GFH is a JV और ये X, Y, Z कौन है, वेंचरर्स है. Assuming joint control. ठीक है. All the investors have right to attend the meetings and to take a decisions in respect of. Oh, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि venturers must be two only. Joint venture मतलब दो के बीच में ही हो सकता है. Can there be relationship between more than two parties? All investors are actively involved in running of the business and they have same share of returns. वो same share से कोई, it's not necessary they have to have equal share. GFH is an example of a joint venture. XYZ are all are what? Venturers. Similarly, just because contractual arrangement has assigned a role of manager to one of them will not disqualify him or others as a venturer. अभी तीनों है लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपने एक को राइट दे के रखा है, लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशंस है. ही हैज टू एक्ट एज पर द कॉमन डिसीजंस टेकन इन अ बोर्ड मीटिंग. एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या तीनों का, एक्स का एक आदमी, वाई का एक आदमी, जेड का एक आदमी नहीं ना, तीनों ने मिलकर कोई आदमी अपॉइंट किया होगा, वो उनमें से होगा या कोई और होगा. एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कंट्रोल तीनों का है. मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर्स हैव टू बी कैरिड आउट एज पर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना. मिस्टर ए, मेसर्स बी एन कंपनी, ए बी एन कंपनी सी लिमिटेड एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर. एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी. वाह. As per the agreement, all the policy decisions of the company will be taken in a regular meeting attended by all of them. Implementation and execution will be responsibility of A. Implementation A करेगा, लेकिन decisions jointly ले जाएंगे. Here A is just acting as a venturer as well as manager. But will B and company and C limited will be called as a venturer? Yes, because they have a joint control. Contractual arrangement में आप किसी एक को मैनेजर करके अपॉइंट कर सकते हो या कोई थर्ड पार्टी को मैनेजर करके अपॉइंट कर सकते हो. That does not disqualify others from being a venturer. Very good. Forms मैंने explain किए, ये सब कुछ explain किया हुआ है मैंने, आप पढ़ सकते हो. अभी example देगा, numerical example. ILU 1 VIMP. ये पहले CPT एग्जाम था उसका क्वेश्चन है. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया हुआ है, पुराने एग्जाम में आता था. CPT में था ये, फाउंडेशन के लेवल का क्वेश्चन है. बट क्या है ना, तुम्हारा लेवल फाउंडेशन से अच्छा है तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए तुमने.
ऐसा इसलिए पढ़ना चाहिए। अब इतने टैलेंटेड बच्चे हो, तुमको तो क्या मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब तुमको तो किसी चीज का लेक्चर्स का जरूरत नहीं, आराम से पास होने वाले बच्चे तुम लोग। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी come together in a joint venture, they purchase a land, jointly controlled ऑपरेशन का एग्जांपल है। असेट परचेस करके वो बिजनेस करना है, उसे बिल्डिंग करने वाला ही है। तो ये एग्जांपल किस चीज का है? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस का एग्जांपल है। वो लैंड खरीद के उसके ऊपर फ्लैट बनाने वाले कुछ तो, एंड सेल द फ्लैट्स। तो ये जेसी ए नहीं है, ओ है। अगर तुम सिर्फ लैंड ओन कर रहे हैं, लेट्स से दो कंपनी, एक इधर एक कंपनी इधर एक कंपनी, उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो उसके लिए वो लैंड खरीद रहे, जेसीए होगा। चल भाई हम दोनों मिलकर लैंड खरीदते, या हम ऐसे ऐसे अपने म्यूचुअल अरेंजमेंट के हिसाब से लैंड को पार्किंग लॉट करके यूज करेंगे। लेट्स से दो थिएटर्स है, उन दोनों के पास पार्किंग का जगह नहीं है, तो दोनों बोलते क्यों कंपीट करते हम। मिस्टर ए परचेस अ लैंड फॉर 60 लाख। ए ने लैंड कॉन्ट्रीब्यूट किया था, अभी कुछ एक्सपेंसेस ए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ एक्सपेंसेस बी करेगा, तो आपको ये करना है। प्रॉफिट लॉस तो टोटल बेसिस पे निकलेगा। ऑन 1 जनवरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ही टुक अ लोन ऑफ 50 लाख एट 8% इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट वो बेयर करेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट विल बी बोर्न बाय द एंटिटी, रिजल्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉट एवर प्रोपोर्शन दे एग्री। बट वो पैसा ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। खर्चा 50 लाख के ऊपर जो 8% आएगा फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, वॉट एवर ईयर एंडिंग क्या है मालूम नहीं मुझे, 1 जनवरी से, अरे वाह ईयर एंडिंग ही नहीं दिया, अज्यूम करो 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो 12 महीने का इंटरेस्ट ए बेयर करेगा क्या? बिकॉज ए ने लोन ले लिया? नहीं, लोन उसने जॉइंट वेंचर के लिए लिया, लेकिन वो लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए उसके खुद के नाम पे लोन लिया, लेकिन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय बोथ इन वॉट एवर द प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा अभी। He also paid the fee of so and so. B supplied the material of 4.5 lakh from his godown and further purchased the material of so and so for a joint venture. C ने बाकी का एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया। On 30 जून each of the venturer agreed. यही क्वेश्चन पहले जमाने में MCQ करके आता था। Each person will take one flat each valued at 10 lakh. 10 लाख रुपीस का फ्लैट तुम ड्राइंग्स के जैसा ही है। एंड रेस्ट वेर सोल्ड बाय देम। ए ने 40 लाख का फ्लैट बेचा, बी ने 20 लाख का बेचा, सी ने 10 लाख का बेचा। तो ये 40 लाख के एक पास जाएगा क्या? नहीं, चारों नहीं भाई, 3 ही लोग हैं, सारे के पास जाएगा। ये 10 लाख भी जॉइंट वेंचर का इनकम है। लोन वाज रीपेड बाय ए अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड नेट प्रोसीड्स वर शेयर्ड बाय देम इक्वली। मतलब जो प्रॉफिट लॉस है उसका क्या है? इक्वल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट, अरे 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 खाया माती, कंसोलिडेटेड P&L account and joint venture account in the books of each venturer. The word consolidated should not be used. There's no point in using the word, क्योंकि तुमने सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं ना। ठीक है, अपने को P&L बनाने का है एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर पहले आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? इनकम्स ऑफ जॉइंट वेंचर एंड एक्सपेंसेस। इनकम कहां से आएगा? फ्लैट बेच के 40 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 3, ओ सॉरी एक, हाँ, 1 फ्लैट 10 लाख ईच। 30 लाख का फ्लैट खुद लेके गए, 40 का बेचा, 20 का बेचा, 10 का बेचा, 1 करोड़ का इनकम आएगा। उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस क्या आएंगे? लैंड खरीदा हुआ एक्सपेंस है उनका। अब बोले सो लैंड इज असेट? नो सर, बैलेंस शीट। अरे गधे, इनके लिए ये बिल्डर है, इसके लिए लैंड इज लाइक अ इन्वेंट्री, इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब करंट असेट है वो। लैंड इज हेल्ड फॉर सेल और यूज टू मेक अ फ्लैट। लैंड से फ्लैट नहीं बनता, लैंड के ऊपर बनता है। तो 1 करोड़ का इनकम आया, 70 लाख प्लस 30 लाख, समझा क्या तुमको? 1 करोड़ का इनकम। तो ये ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L। अच्छा, उनको वो कहना था कंसोलिडेटेड, इट्स बेसिकली P&L ऑफ अ जॉइंट वेंचर। इसको कंसोलिडेटेड नहीं बोलते, बट ठीक है, अपने घर की बात है, अपना इंस्टीट्यूट है। अभी तक तो मेरा है, तुम्हारा हो सकता है। मिस्टर ए, लैंड उसने 60 लाख का डाल दिया, उसने 60 लाख का लैंड डाल दिया। ए ने रजिस्ट्रेशन फी पे किया, बी ने वो मटेरियल दे दिया, सी ने बाकी के खर्चे किए, इंटरेस्ट ए ने पे किया 2 लाख का इंटरेस्ट, वो 60 लाख के लोन के ऊपर 8%। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, नहीं लोन 50 लाख का था, 50 इंटू 8%, 2 लाख है क्या? 4 लाख आता है। फिर ये सब कुछ 30 जून को ही खत्म हुआ है क्या? ऑन 30 जून ईच ऑफ द वेंचर टुक अवे। 6 महीने में इन्होंने बिल्डिंग खड़ा कर दिया रे, शायद चाइना में हो गए।
हमारे यहाँ पे 6 महीने में बिल्डिंग, खुद का बिल्डिंग भी नहीं बना सकते तुम 6 महीने में, परमिशन ही नहीं मिला 6 महीने तक। जब तक तुम पैसा नहीं खिलाते तब तक, पैसा मतलब वर्कर्स को, तुम जो आर्किटेक्ट है उसको पैसा नहीं दोगे, तुम डिजाइन नहीं अच्छे से करोगे, तब तक कैसे बिल्डिंग बनेगा। इतना अच्छा हमारे यहां पर हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो ऐसा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट तीनों को जाएगा, समझा। ये हो गया तुम्हारा कंसोलिडेटेड पीएनएल। लेकिन अभी ए प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, ए का प्रॉफिट शेयर कितना है 6,30,000, लेकिन ए ने पैसा जो डाला है, ये देखो ये जो अकाउंट है ना इन द बुक्स ऑफ ए, मैंने बहुत सिंपल है, डाला मिला अकाउंट बोलता मैं इसको। तुमने कितना, मैंने उस टाइम पे भी बोला होगा, तुमने कितना पैसा डाला है, तुमको कितना पैसा मिला है, या तुमने कितना पैसा डाला प्लस तुमको मनी रिसीवेबल, डेबिट साइड इज नथिंग बट मनी रिसीवेबल। ए ने क्या क्या किया, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए ने 50 लाख का क्या किया, लोन लिया। हाँ लोन लिया, ठीक है, उसने लोन लिया ना, उसने प्लस उसने खुद का 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, टोटल 60 लाख रुपया लैंड के लिए डाला। उसने 60 लाख रुपया लैंड के लिए डाला, 50 लोन लेके और 10 खुद के जेब से, प्लस रजिस्ट्रेशन फी पे किया, प्लस उसने इंटरेस्ट पे किया जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे। तो जो भी खर्चा तुमने जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे किया वो तुम डेबिट करो, वो तुमको रिसीवेबल है, प्लस तुम्हारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी रिसीवेबल है। किससे, जॉइंट वेंचर से। इमेजिन एक हाइपोथेटिकल एंटिटी है, सच में नहीं है, लीगली आपने सेपरेट एंटिटी फॉर्म, हेलो हेलो आ रहा है क्या ऑनलाइन पब्लिक, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट, सो हाँ स्टार्ट कर। सो लेट अस कंटिन्यू आफ्टर दैट इंटरप्शन। So we were basically doing this question, illustration 1. It's a good question. You should expect that from the exam point of view. तो ऑनलाइन पब्लिक जो जिनका लिंक मिस हो गया होगा, हमने बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट किया। पहले हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कंसोलिडेटेड पीएनएल में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया। हर एक जो पार्टनर था उसका हमने शेयर कैलकुलेट कर लिया, उसका हमने शेयर कैलकुलेट कर लिया। रिस्पेक्टिव पार्टनर का जो भी शेयर आता है प्रॉफिट लॉस का वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और फिर हमने क्या किया, अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट पेएबल निकाल दिया। तो यहां पर मिस्टर अमाउंट रिसीवेबल पेएबल कैसे निकालना है, तुमने कितना पैसा डाला है, तुमको कितना पैसा मिला है। मनी रिसीवेबल, रिसीवेबल इज इक्वल टू व्हाट यू हैव पुट अप प्लस योर शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस व्हाट यू हैव रिसीव्ड, माइनस व्हाट यू हैव रिसीव्ड। बाहर कोई तो पैर मारेगा उसको, कोई तो खड़ा कर उसको, जाएगा लेक्चर वापस नहीं तो। सो मनी रिसीवेबल इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पे क्या आता है, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड बाय यू दैट विल कम अप ऑन क्रेडिट साइड, हाँ है ना। और फिर हम क्या करते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं, बैलेंस जो भी अमाउंट है वो हम रिसीव कर लेंगे। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी हम क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, तो बी ने कितना पैसा डाला है वो पैसा हम क्या करेंगे, डालेंगे। सेम वे बी ने पे किया, सी ने पे किया, समझा सबको। जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट, वापस वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कॉमन कंट्रोल है, सब कुछ है। तो ये ऑयल रिफाइनरी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया, जस्ट फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जेसीओ एंड जेसीए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन जेसीओ वेंचरर्स यूज देयर ओन assets for joint venture business, but in JCA jointly controlled assets are there. Just time pass है कुछ तो। JCO carry out the joint operations to earn the income, whereas JCA में you are doing a common construction और कुछ infrastructure का आप
फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हो, जेसीए के अंदर आप एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हो और उस फैसिलिटी को आप कॉमनली यूज करवा रहे हो। देखो इलस्ट्रेशन बहुत ही बेसिक टाइप का इलस्ट्रेशन है। A Limited, B Limited and C Limited decided to jointly construct a pipeline to transport a gas from one place to another place that was manufactured by them. For the purpose, following expenditure was incurred: building so and so pipe, building to be depreciated, pipeline का depreciation दिया, computer वगैरह सब कुछ दिया। They decided to equally bear the total expenditure incurred. Jointly controlled asset है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो वेंचरर है उसके बैलेंस शीट में क्या जाएगा, असेट में उनका जो स्टेक है वो जाएगा इक्वल, है ना। डिसाइडेड टू बेयर द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस कम्स टू 6 लाख ईच ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अरे यार कंसोलिडेटेड कहां से आए, ये वर्ड जो कंसोलिडेटेड यूज कर रहे हैं उन्होंने खुद ही लिखा है, ऊपर कंसोलिडेशन नहीं होता, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन नीचे वर्ड यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलता है, उतना चलता है। बेसिकली देखो कितना कंट्रीब्यूट किया रे, देखो तुमने 12 लाख का बिल्डिंग ले लो, पाइपलाइन 60 लाख, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख एंड व्हीकल्स ऑफ 9 लाख, 84 लाख। लेकिन उसके ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो यहां पर उन्होंने शेयर कैपिटल इक्वली, सब कुछ इक्वली, शेयर कैपिटल कहां से लाया इन्होंने, मेरे को वही चीज समझ में नहीं आ रही। शेयर कैपिटल उन्होंने बैलेंसिंग फिगर लिया है, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू बैलेंसिंग फिगर, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, टैली नहीं हो रहा था इसलिए बैलेंसिंग। तो क्या आपको असेट साइड ही मालूम है, सिर्फ लैंड बिल्डिंग क्या करना है, लैंड को बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन सबका क्या किया उन्होंने, सब असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट लिखा है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इक्वली सब जगह पे तुमने देखा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जो अमाउंट आ गया उसको क्या किया उन्होंने, लिख दिया शेयर कैपिटल करके। अभी रिस्पेक्टिव वेंचर के बुक में देखो, ए लिमिटेड के बुक्स में क्या दिखेगा, उसका शेयर दिखेगा बस, P&L में उसका शेयर 4,20,000 इन डेप्रिसिएशन एंड खर्चे का 2 लाख, 6 लाख टोटल खर्चा था ना, डिवाइडेड बाय 3, डेप्रिसिएशन 4,20,000 आया। कैसे, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, टोटल डेप्रिसिएशन शुड बी 12,60,000, 12,60,000 का डिवाइडेड बाय 3। तो ए क्या करेगा, इतना दिखाएगा बैलेंस शीट में, ए असेट्स दिखाएगा बैलेंस शीट में। देखो उसने नोट्स अकाउंट में वो आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन। सो यू आर डूइंग व्हाट, ये कौन सा बैलेंस शीट में जा रहा है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं है। हाँ इधर सही लिखा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंसोलिडेटेड वर्ड इधर नहीं लिखा, बहुत सही है। ये ऊपर इनका जो वर्ड कंसोलिडेटेड ये यूज कर रहे हैं ना इंस्टीट्यूट, दैट इज एक्चुअली नॉट अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जस्ट लाइक अ ड्राफ्ट बैलेंस शीट। ड्राफ्ट क्योंकि लीगल एंटिटी है नहीं, यू कैन नॉट मेक दिस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लीगल। ऊपर सही वर्ड यूज किया था, ऊपर तुमने अगर ऑब्जर्व किया ना, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उधर उन्होंने ड्राफ्ट, इट्स लाइक अ what you can say summary statement, it's not a ledger account or it's not a balance sheet. Next, jointly controlled asset हो गया तुम्हारा। अब jointly controlled entity का क्वेश्चन करते हैं, ये इक्वल के A B C वापस कॉपी किया है, jointly controlled entity में कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। तो देखो अभी कंसोलिडेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे ये 3 में कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है। A UK based company entered into a joint venture with B in India, wherein B Limited will import goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India. A and B agree to bear the expenses and revenues in the ratio of 5:4, and whereas profits are distributed equally. क्या सुन लो, dangerous, must be remembered, a question that must be remembered. Why? रेशो अलग अलग है, ठीक से पढ़ना है। सुनो, डेंजरस 4 नंबर अच्छा है, 4 नंबर में एक्चुअल कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें कंसोलिडेशन हो ही नहीं रहा है। इसमें बेसिकली तुम्हारा तुमको दिमाग लगा के क्या करना है, कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड मतलब एंटिटी का P&L बैलेंस शीट बनाना है। अभी एंटिटी अलग है ना, कौन एंटिटी है, ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड, और उन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, उसका नाम नहीं दिया AB लिमिटेड,
अज्यूम करो ए बी लिमिटेड, तो क्या है जॉइंट वेंचर में होने क्या वाला है, बी लिमिटेड विल इंपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए फॉरेन में, बी क्या करेगा, फॉरेन से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करेगा और उनको इंडिया में बेचेगा, सेल देम इन इंडिया. A Limited and B Limited agree to share expenses and revenues in the 5:4, but profit is to be distributed equally. हाँ बोलेगे सर how is it possible? Expenses incomes 5:4 तो profit भी 5:4 में जाएगा. यही तो मैजिक अभी करना है अपने को. They agreed to share expenses and revenues, मतलब शायद उसका पेमेंट जो है एक्सपेंसेस इनकम का वो 5:4 में होगा, बट प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. आगे और डेंजरस, ए इन्वेस्टेड 49% ऑफ द कैपिटल बट हैज इक्वल शेयर इन द असेट्स एंड इक्वल शेयर फॉर liabilities. I honestly don't know how this will happen. You are having 49% ownership. How will you get equal share? मतलब 50 हो रहा है. अब उसका जॉइंट वेंचर का ट्रायल बैलेंस दिया, परचेसेस. बच्चों जितना मेरे को समझ रहा है ना, रुको, 5:4 में एक्सपेंसेस एंड व्हाट इनकम्स चले जाएंगे. डेंजरस. देखो ये जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है, तो जो शेयरिंग होना चाहिए ना, वो शेयरिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में होना चाहिए. शेयर होल्डिंग 49:51 है, तो 49:51 के रेशो में सारा एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लायबिलिटी एक ही रेशो में सब कुछ जाना चाहिए. अभी प्रॉब्लम क्या है, इधर पर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू के लिए 5:4 लिखा है, प्रॉफिट के लिए इक्वली लिखा है, शेयर होल्डिंग 49:51 है. देखो अभी, मतलब देखो अभी ए बी, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स 5:4, परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, प्रॉफिट 1:1, असेट्स लायबिलिटीज 1:1, शेयर होल्डिंग 49:51. My capabilities of understanding finance are over. I am not a supernatural person. Let us see. ये आपको बेसिक ट्रायल बैलेंस दिया है और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है. पूछा क्या है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंस्टीट्यूट प्रणाम, बोर्ड ऑफ स्टडीज. हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? कंसोलिडेटेड के लिए स्टैंड अलोन होना चाहिए, किसी दूसरे एंटिटी को मर्ज होना चाहिए. यहां पर तुमने ये जॉइंट वेंचर के ऑपरेशंस दिए, ए का बैलेंस शीट किधर दिया तुमने, बी का बैलेंस शीट किधर दिया. कंसोलिडेशन मतलब क्या होगा, ए का स्टैंड अलोन प्लस बोर्ड ऑफ स्टडीज. प्लीज तुमने ही इसके आगे जो इलस्ट्रेशन दिया है, जो मुझे अभी इधर दिखाई दे रहा है, वो सही दिया है तुमने. ये ऐसा दोगलापन क्यों है, बट जाने दो, याद रखना पड़ेगा. सॉरी. तो अभी करना क्या है, इनके पीएनएल में कुछ भी इन्होंने क्या किया है, जॉइंट वेंचर का पीएनएल बनाया, उसको हम कंसोलिडेटेड नहीं बोलते हैं. जॉइंट वेंचर का स्टैंड अलोन पीएनएल बन गया, वेंचरर का स्टैंड अलोन बनेगा और वेंचरर सीएफएस बनाएगा. वेंचरर मेक्स अ सीएफएस. वेंचरर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 13,05,000 ऊपर से कॉपी हुआ. शेड्यूल 3 का फॉर्मेट याद रखना. परचेसेस 9 लाख आगे नीचे, अदर एक्सपेंसेस बाकी सब कुछ अच्छा एक ही है. बहुत बढ़िया. चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा है, तो एक्सपेंसेस में से माइनस होता है. शेड्यूल 3 का चैप्टर याद रखना. तो चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख क्या किया मैंने, माइनस कर लिया. ठीक है, ऐसा जाके टोटल एक्सपेंसेस आए और अभी क्या किया अपने, प्रॉफिट निकाला, क्योंकि और कुछ आइटम्स है ही नहीं. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विटी ये बैलेंस शीट वाले आइटम्स है. चेंज इन एंट्री, तो अभी देखो बैलेंस शीट, पहले असेट्स देखो, 6 लाख के असेट्स
वही चीज नोट्स में लिखा है उन्होंने. यू विल गो मैड. जस्ट वेट. 6 लाख. 6 लाख आ गया बैलेंस शीट. 2 मिनट रुकना. इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख आया था. अदर करंट असेट्स क्वेश्चन में ही 2 लाख दिया था. करंट लाइबिलिटीज 1 लाख. कहां से लाया रे 1 लाख? क्वेश्चन में दिया है. हाँ दिया बहुत बढ़िया. 1 लाख का करंट लाइबिलिटी लाया. लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख दिया था क्वेश्चन में. कहते लोन अनसिक्योर्ड लोन दिया है. कैपिटल 4,01,000. 4,01,000. रिजर्व सरप्लस ऊपर का प्रॉफिट यहां पर आया. हम बोलेंगे सर क्या किया है? अभी जादू जो आपको दिखाई देने वाला है वो है नोट्स टू अकाउंट्स में. सेल्स ए बी 5:4 में गया. सेल्स 5:4 में. चेक करो. 5 हाँ है. परचेसेस 5:4 दिखता है ना. 5 लाख 4 लाख. अदर एक्सपेंसेस 5:4. अब क्लोजिंग स्टॉक इक्वल. प्रॉफिट कैसे इक्वल जाएगा? प्रॉफिट तो इक्वल जाना चाहिए. देखते हैं अभी. शेयर कैपिटल ये कौन सा रेशियो है? 4,01,000 के लिए 49:51 का रेशियो है. तो उन्होंने क्या किया है? इंडिविजुअल आइटम कैसे भी जैसे चाहिए वो रेशियो में, जो ऊपर मैंने टेबल बनाया था ना, वो रेशियो में इंडिविजुअल आइटम कैसे भी बाइफरकेट किए. अभी देखो देखो एक मस्त मस्त देखो ना. प्रॉफिट निकलता कैसे? इनकम माइनस एक्सपेंस. ए को कितना इनकम दिखाया इधर? 7,25,000. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 7,25,000 ए का इनकम माइनस परचेसेस 5 लाख. माइनस परचेसेस हाउ मच? 5 लाख. माइनस अदर एक्सपेंसेस फॉर ए 1,70,000. हाँ या ना? 1,70,000 क्या है रे? ए के एक्सपेंसेस है. अदर एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक 50,000. क्यों? क्लोजिंग स्टॉक इज अ क्रेडिट टू द पी एंड एल ना. इज इक्वल टू कितना आया? 1,05,000. प्रॉफिट गोज टू हुम? ए. वो जो ब्रेकअप लिखा है उसके हिसाब से 1,05,000 ए को गया. बी को देखते हैं. चलो टेक ऑन ए कैलकुलेटर. रेवेन्यू फॉर बी. रेवेन्यू फॉर बी 5,80,000 is a revenue for B. Minus expenses 5 lakh. 4 lakh, sorry, my mistake. 4 lakh. Minus other expenses 1,36,000. 1,36,000. समझ लो. Plus 50,000 closing stock. 94. ये हो गया B को. ये हो गया 1,99,000. That is how you have shown the profit. Individually, this is how they are distributed to A and B. लेकिन अभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे. देखो रिजर्व सरप्लस में देखो क्या मैजिक कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए बी 199, 99,500, 99,500. अरे थोड़ा बहुत खुद की ना तो खुदा की ऐसे कुछ तो बोलते हैं हिंदी में. खुदा की ना तो खुद की ऐसे कुछ जो भी होता होगा हिंदी में. आई डोंट नो. क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता. अनसेक्योर्ड लोन लायबिलिटीज इक्वल. कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल उन्होंने कितने रेशो में लिया? 49:51. सुनो शेयर कैपिटल आता कैसे? असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस रिजर्व्स शुड बी शेयर कैपिटल. चलो असेट्स ले लो. प्रॉपर्टी ए का 3 लाख. इन्वेंट्री ए का 50,000. अदर असेट्स 1 लाख. इतने असेट्स तुमने ए को दिखाए. माइनस लायबिलिटी 1 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग. माइनस करंट लायबिलिटी 50,000. माइनस रिजर्व्स 99,500. ए को गया 2,05,000. इधर लिखा 1,96,490. जस्ट बिकॉज दे आर नॉट मेड. इन्होंने अगर ऐसा ही ए बी टोटल किया ना, फिर उनको समझा रहे चला टैली नहीं हो रहा है. ये इनका टैली क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने ए बी टोटल ऐसा किया ही नहीं. हर एक आइटम को अपने अपने हिसाब से प्रोपोर्शन में किया. अरे थोड़ा बहुत
आई कैन अंडरस्टैंड कैलकुलेशन मिस्टेक, इधर का उधर मिस प्रिंट हो गया, दैट इज ओके। वो मेरे से किसी से भी होता, मेरे से होगा, ये होगा, दिस इज नॉट अ मिस्टेक। बट ये क्वेश्चन दिया है, बेटा तुमको याद रखना पड़ेगा। सो देयर इज नो अदर आंसर दैट आई कैन गिव। चलो, समझ में आया तुमको? आगे बढ़ना। ये ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सही वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने यहां पर ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि जेसीई में कंसोलिडेशन होता है, और ये पूरा स्टोरी लिखा है। ऐसा ही कुछ तो एक उन्होंने लिखा है कि कैसे दिखा दें, एक एग्जांपल दिया है, और यहां पे नीचे सही दिया है। ये क्वेश्चन सही है। ए बी एन सी, अपने बुक में जो मोना से था ना कुछ, तो वो टाइप वाला क्वेश्चन है। सो ऑब्जर्व, एक ही सेकंड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विथ whom? बी, ऑन 1:1 बेसिस। अभी यहां पर कैसे एक ही रेशो आया सब जगह पे? लॉजिकली रेशो शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में रहता। उधर क्या था क्वेश्चन में? असेट्स लायबिलिटी के लिए 1:1 था, शेयर होल्डिंग अलग था, और इनकम एक्सपेंसेस अलग था, और प्रॉफिट भी 1:1 था। एग्जाम में आपको जैसे इंस्टीट्यूट ने लिखा, अगर आया तो वैसा कैसे, लॉजिकली मेरे को लगता है एग्जामिनर कॉपी नहीं करेगा उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आ सकता है 4, या ये करेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन भी दिया है कंसेप्ट समझाने के लिए। जॉइंट वेंचर किया एंड न्यू कंपनी सी इज फॉर्म। तो कौन है सी? सी इज अ जॉइंट वेंचर। तो क्या क्या बनेगा? सी अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, ए अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, और ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जिसमें ए का खुद का स्टैंड अलोन का अमाउंट और सी का अमाउंट लाइन बाय लाइन ऐड होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। शेयर कैपिटल ए 10 लाख, ये 10 लाख किधर दिखेगा? ए के स्टैंड अलोन में दिखेगा, और ए के कंसोलिडेटेड में भी कैपिटल उतना ही दिखेगा, क्योंकि कंट्रोल अभिषेक, माता बोल रही है कंसोलिडेटेड में शेयर कैपिटल ऑफ ए विल बी 10 लाख प्लस 5 लाख का 50%। शेयर कैपिटल में नहीं होता। एक सेकंड समझाने दो। माता, ए के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में 2,50,000 इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर दिखता है। वो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर नॉक ऑफ हो जाता है सीएफएस में। एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ए का इमेजिन करो, उसमें इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर दिखेगा। जब एक कंसोलिडेटेड बनाएगा, असेट्स में उसका प्रोरेटा असेट ऐड हो जाएगा, खुद की असेट प्लस प्रोरेटा असेट, प्रोरेटा असेट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आउट, लायबिलिटीज भी खुद की लायबिलिटीज प्लस प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी आउट आ जाएगा वहां पर। इनकम एक्सपेंसेस भी वैसे आ जाएंगे। शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड में खुद का ही शेयर कैपिटल दिखता है। रिजर्व्स में खुद के रिजर्व्स प्लस अपना जो शेयर है उसके रिजर्व्स में सब कुछ AS21 के जैसा होगा। ये गुडविल वगैरह कुछ आ नहीं रहा है। क्यों गुडविल नहीं आ रहा है? स्टार्ट जिस दिन तुमने इन्वेस्टमेंट किया था और उस दिन की जो नेट असेट्स थी सेम ही थी, तो गुडविल वगैरह कुछ नहीं आएगा। देखो, you are required to make a balance sheet of A limited and B limited under proportionate consolidation। तो A क्या करेगा? खुद का भी बैलेंस शीट बनाएगा। तो ये जो बैलेंस शीट, आई डोंट नो whether it is standalone or consolidated। हाँ, ये कंसो बैलेंस शीट है, लिखा ही नहीं। हाँ, इसलिए मैंने लिखा है CFS। जहां पे लिखना था उधर लिखा नहीं है। ये कंसो बैलेंस शीट बन रहा है। कंसो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल खुद का ही दिखता, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल उतना ही रहता कंसो में। शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करने का, लाइन बाय लाइन, मतलब दोनों का ऐसे सब कुछ एडिशन नहीं करने का है। सब कुछ एडिशन के तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा,
क्यों डबल काउंटिंग होगा? ये जो 5 लाख में शेयर है तुम्हारा 2.5 लाख, वो 2.5 लाख मतलब इधर ही है। तो असेट साइड से हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट नॉक ऑफ करते हैं, उसके बदले में वहां से जो असेट्स और लायबिलिटीज है वो ले रहे हैं, मतलब उसका कैपिटल ले रहे हैं ना। मुश्किल देखो, कैपिटल उतना रहेगा, 24 लाख कैसे आ रहे? खुद के रिजर्व 18 लाख प्लस 12 लाख का 50%, तो सब जगह पे 24 लाख आएगा इसका। 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख आएगा लोन। 3 + 1, हाँ ना। नेक्स्ट 4 लाख प्लस 50,000, 4.5 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30 लाख 50,000 प्लस इसका हाफ कितना है? 9.75। इन्वेस्टमेंट नॉक ऑफ हो जाता है। करंट एसेट 2 लाख प्लस दिस 2.25 लाख आएगा। वैसा ही उन्होंने पूरा बैलेंस शीट बना के रखा है। एक आया वो नोट्स टू अकाउंट्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस लाइन बाय लाइन ऐड हुआ। खुद के ए लिमिटेड ओन रिजर्व्स प्लस सी के रिजर्व्स आए। सब जगह पे ओन प्लस सी, बी भी वही करेगा, सेम चीज बी के लिए आया। हो गया लास्ट आइटम ऑफ द स्टैंडर्ड। क्या लास्ट आइटम है? ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ वेंचरर एंड व्हाट? जॉइंट वेंचर। पीछे कोई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, एक ही क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन वाला है। इंस्टीट्यूट यू मस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज दैट आर गिवन आउट देयर। थियरी क्वेश्चंस जो दिए वो थोड़े आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो। थियरी मेरे को ज्यादा नहीं लगता आएगा, तुम्हारा अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा तो लिख पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिए, एमसीक्यूज जो दिए और जो इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट ने दिए, यू शुड बी ऑब्वियसली गोइंग थ्रू देम इन एडिशन टू व्हाटएवर वी आर डन इन द रेगुलर लेक्चर्स। अभी देखो ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मतलब बेसिकली हमें करना क्या है मालूम है? अभी अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करने की हम बात कर रहे हैं। मैं आ जाता हूं नोट्स के ऊपर, अपने नोट्स में भी ये दिया है। किधर गया ट्रांजैक्शंस? हाँ, व्हेन अ वेंचरर contributes or sells assets to a joint venture in case of a jointly controlled operations or assets। पहले मैं JCO या JCA की बात कर रहा हूं। तुमने पेमेंट किया, लेकिन वो असेट में तुम्हारा ओनरशिप कितना है, तुमने कितना पे किया और तुम्हारा ओनरशिप कितना है, मे नॉट बी सेम। यू माइट हैव पेड 100% फॉर असेट बट योर ओनरशिप इज ओनली 60%। तो मतलब क्या है, 40% तुम दूसरे से रिसीवेबल दिखा रहे हो। जैसे अभी याद है क्या, लैंड, हमने जो क्वेश्चन किया था, लैंड पूरा किसने खरीदा था? ए ने। तो लैंड का पूरा प्रॉफिट उसको मिला क्या? तुमने पेमेंट कितना किया है और तुम्हारा ओनरशिप कितना है, ये दोनों चीजें डिफरेंट हो सकती है ना। लैंड के लिए मैंने पूरा पे किया, बट विल आई शो फुल लैंड? नो, आई विल शो ओनली माई पार्ट ऑफ लैंड। वहां पर तो हमने ड्राफ्ट P&L बनाया था, उसमें हमने इंडिविजुअली बैलेंस शीट बनाया नहीं था ना। वो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने पूछा ही नहीं था, इंडिविजुअली बैलेंस शीट पूछा नहीं था ना। वो JCO का एक लैंड का क्वेश्चन था ना, JCO ये वाला था ना मेरे से। लैंड का एक क्वेश्चन आया था ना, अभी किया ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इलू 1 था क्या? तो इलू 1 में हमने जब ए के बुक्स में गए, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था हमने, तो हमने अपना जो ओनरशिप है उतना ही दिखाया। बैलेंस शीट P&L पूछा ही नहीं था उसमें क्वेश्चन में। अगर ये बैलेंस शीट भी पूछा होता एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट और अगर लैंड रहता था, तो यू वुड नॉट शो एंटायर लैंड जस्ट बिकॉज यू हैव पेड द एंटायर लैंड। तो क्या लिखा है देखो, when a venturer contributes or sells assets to a joint venture, jointly controlled enterprise, recognize only that portion of gain or loss which is attributable to the interest of other venturer. Recognize only that portion of gain or loss which is attributable to interest of other venturer. Recognize full amount of loss when evidence provides reduction in the net realizable value of current assets or oblique impairment loss। एक काम करो डायरेक्टली ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन है, वो पढ़ लो। ज्यादा इसको, या मॉड्यूल में उन्होंने ऐसे पैराग्राफ्स करके दिया, देखो यही चीज है ना, एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है इधर।
हाँ मालूम है, नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आते हैं ना, बट उसके पहले ये वाला, व्हेन वेंचरर ट्रांसफर्स और सेल्स असेट्स टू जॉइंट वेंचर, खुद के असेट्स तुम जॉइंट वेंचर को दे रहे हो, द वेंचरर शुड रिकॉग्नाइज ओनली दैट पोर्शन ऑफ गेन और लॉस विच इज अट्रीब्यूटेबल टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर वेंचरर। हाँ बोले हाँ सर अदर कैसे, मेरा शेयर है वो आना चाहिए। 2 मिनट रुक बेटा, क्या है मैं समझाता हूं, ये लाइन तेरे को समझी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, अदर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम क्यों बुक करें? हम अदर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, ये ट्रांजैक्शन क्या मालूम है, मेरी खुद की असेट है, मैं खुद की असेट जॉइंट वेंचर को बेच रहा हूं एट अ हायर प्राइस देन द बुक वैल्यू। लाइक ए हैज अ लैंड ऑफ रुपीज 80 लाख, A has a land of rupees 80 lakh. He is giving it to joint venture. He gives to JV at rupees 150 lakh. उसने जेवी को बेचा वो लैंड, उसने खुद खरीदा था पहले 80 लाख को, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड अलोन बुक्स में उसके कितने पे, वो 80 लाख, उसने जेवी को बेचा, कितने को बेचा? वही बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन अ वेंचरर एंड अ जॉइंट वेंचर, उसने जेवी को बेचा 150 लाख उसने दिया। तो अब आप ये नहीं बोल सकते ए के लिए प्रॉफिट 70 लाख का बुक करो, नहीं, क्यों? तुमने खुद प्रोवाइड किया है ना। तो शेयर क्या है, एबीसी शेयर इन 5:4:3, हाउ मच प्रॉफिट ए शुड बुक? ए शुड रिकॉर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 150 माइनस 80 इंटू 7/12, 5 4 9 3 12, हाँ इतना ही प्रॉफिट ए ने बुक करना चाहिए। बोलो 40.83। वापस पढ़ो, when the venturer transfers or sells the assets, the venturer should recognize only that portion of gain or loss which is attributable to the interest of others। आप बोलेंगे सर क्यों सर? अरे क्योंकि बाकी का जो 5 है, मैंने 5/12 जो है वो तुम्हारा शेयर ही है ना उसमें। हाउ कैन यू अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम योर सेल्फ? यू कैन नॉट अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम योर सेल्फ बिकॉज आपका ओनरशिप जॉइंट वेंचर में 5/12 आपका ही ओनरशिप है, वो कोई लीगल एंटिटी अलग नहीं है, दैट इज लाइक योर प्रोपोर्शन ओनरशिप, तो वो आपका असेट कॉस्ट पे ही दिखते रहेगा। जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट है, आपने जेवी को दे दिया 150 लाख में, लेकिन आपने प्रॉफिट 70 लाख का नहीं कमाया, आपने प्रॉफिट टोटल कितना कमाया? 40.83 का ही कमाया, बाकी का जो है वो तुम्हारा शेयर है। तुम्हारा शेयर को तुम 80 से ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट को तुम रिकॉर्ड कर जाओगे, तुम्हारे ए के P&L में 40.83 ही आएगा। ये हो गया प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट लॉस हो गया। द वेंचरर शुड रिकॉग्नाइज फुल अमाउंट ऑफ एनी लॉस ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन और द सेल प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ रिडक्शन इन द एनआरवी। मतलब लॉस के लिए आपने कंजर्वेटिव रहना चाहिए। अगर 80 लाख का यही मशीन लैंड तुमने वेंचर को बेचा था 70 लाख में, तुमको 10 लाख का लॉस हो गया, यू शुड प्रोवाइड फॉर अ लॉस, 10 लाख का लॉस इफ द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड हैज रियली कम। तो इन शुड क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट गेन ओनली यू शुड रिकॉर्ड फॉर द ओनरशिप ऑफ अदर्स। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस शुड बी रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंट प्रॉफिट। ये एक्चुअली ऊपर गेन और लॉस नहीं लिखना चाहिए था, इधर सिर्फ उन्होंने गेन लिखना चाहिए था। गेन शुड बी रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ अदर्स एंड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड फुल्ली। लॉस शुड बी रिकॉर्डेड फुल्ली। समझा क्या तुमको? ठीक है, आगे ये पहला पैराग्राफ क्लियर है क्या? यहां पे क्या कर रहे हैं तुम? तुम्हारी खुद की असेट किसको बेच रहे हो? जॉइंट वेंचर को बेच रहे हो। डू नॉट रिकॉर्ड अ फुल प्रॉफिट, रिकॉर्ड अ फुल लॉस ओनली इफ देयर इज एविडेंस ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू। 80 लाख का बिल्डिंग लैंड अभी 70 लाख को आ चुका है, तो तुम्हारा ओन शेयर भी रिडक्शन हो गया ना। प्रोवाइड फॉर अ फुल लॉस। 7/12 तो लॉस हो ही चुका है। अगर 80 का माल तुमने 70 को बेचा तो तुम्हारे को 7/12 का लॉस तो पक्का हो चुका है, वो बाकी का तुम्हारे शेयर का भी लॉस बुक करो अगर रिडक्शन इन वैल्यू है तो। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेंचरर व्हेन अ वेंचरर फ्रॉम द जॉइंट वेंचर परचेसेस द असेट। अभी उल्टा हो रहा है, ऊपर वाले केस में क्या कर रहा था?
वेंचरर वॉज सेलिंग टू जेवी, अब तुम क्या कर रहे हो, जेवी से असेट्स खरीद रहे हो. द वेंचरर विल नॉट रिकॉग्नाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द जॉइंट वेंचर अनलेस ही डिस्पोजेस ऑफ असेट. मतलब समझ लो, जॉइंट वेंचर ने फ्लैट प्रोड्यूस किए, कंस्ट्रक्ट किए, प्रोड्यूस गलत वर्ड है, कंस्ट्रक्ट किए. उन फ्लैट्स की कॉस्ट थी 70 लाख. तुमने को वेंचर करके तुमने एग्रीड वैल्यू पे ले लिया 90 लाख पे. हर एक ने 90 लाख पे उसको टेक ओवर किया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग में नॉट बी इक्वल, या हर कोई इक्वल क्वांटिटी में ही फ्लैट्स लेगा ऐसे जरूरी. तो मैं एक वेंचरर हूं, मैंने जॉइंट वेंचर से फ्लैट ले लिया, कितने पे, 90 लाख से, लेकिन उस फ्लैट की कॉस्ट कितनी है, 70 लाख ही है. तो अब क्वेश्चन ये है, when a venturer buys it from this, will you show this flat at 70 or will you show this flat at 90? Answer is you should show this flat at 70 because तुम्हारे लिए कॉस्ट 70 है. जो तुम थर्ड पार्टी को किसी को बेचोगे तब प्रॉफिट रियलाइज होगा. वही लिखा है, when a venturer from a joint venture purchases asset, venturer will not recognize his share of profit. Venturer will not recognize his share of profit. हाँ, his share. जो 20 का प्रॉफिट था, 20 में से तुम्हारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लेट्स से तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 5 लाख है, तो तुम उस फ्लैट को 85 लाख पे दिखाओगे, क्योंकि 70 लाख तो कॉस्ट है ही, प्लस 15 लाख का प्रॉफिट तुमने पे किया बाकी लोगों को. लेकिन तुमने बेसिकली क्या किया, यू आर बेसिकली बाइंग इट फ्रॉम जॉइंट वेंचर. डोंट शो यूर शेयर ऑफ प्रॉफिट. अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम जब जॉइंट वेंचर को बेचते हो तब तुम तुम्हारा खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, या जॉइंट वेंचर से जब तुम खरीद रहे हो तो खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो. A venturer should recognize his share of the losses resulting from the transaction in the same way as profits, except that losses will be recognized in full immediately. Loss के लिए concept of prudence, immediately record करो. ये दोनों में क्या था, ये दोनों पैराग्राफ जो है वो JCE के लिए नहीं है, JCO या JCA के लिए है. ये in case of a joint venture in the form of a separate entity, in case of a joint venture that is in the form of separate entity, then the provisions of the above para will be followed only, ये ऊपर का जैसे, only followed for consolidated financial statement and not for the venturers. क्योंकि उस केस में तो एंटिटी ही अलग है ना, लीगली आप ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम उस केस में तुमने एक्चुअल परचेस किया किसी थर्ड पार्टी. JCE है तो JCE is as good as a third party for you. In the books of the venturer, profit loss from such transactions is recognized in the full. तो ये जो था ये JCO और JCA के लिए था. JCE में तो it is like a normal purchase and sell, हाँ ना. और JCE में ये जो प्रोविजंस थे प्रॉफिट एलिमिनेशन का, that will be followed only for consolidated. स्टैंड अलोन में ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम तो पूरा सेल रिकॉर्ड करोगे या तुम पूरा परचेस रिकॉर्ड करोगे ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. JCE है तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं. कौन से, स्टैंड अलोन. स्टैंड अलोन में पूरा का पूरा प्रॉफिट रिकॉर्ड करो या पूरा का पूरा एसेट रिकॉर्ड कर लो. लेकिन अगर कंसोलिडेटेड आप बना रहे हो JCE में, तो आपको सिर्फ आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब इंटर प्रॉफिट जो है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट लाइक होल्डिंग सब्सिडरी. देखो क्वेश्चन, A and B एस्टैब्लिश सेपरेट व्हीकल दैट इज एंटिटी. सेपरेट एंटिटी मतलब थर्ड पैराग्राफ आ गया. वे एंटिटी J, नाम छोड़ दो, नाम में कुछ नहीं रखा है. Each operator has 50% ownership interest and takes a 50% output, that is okay. On formation of joint venture, A contributed a property of the fair value of 110 crore and agreed to contribute his experience over the years towards the venture. ठीक है, 110 करोड़ का प्रॉपर्टी उसने, फेयर वैल्यू है प्रॉपर्टी का, उसका बुक्स में क्या है मालूम नहीं. B contributed a fair value of 120 crore. A ने कितने का प्रॉपर्टी दिया, 110 का. B ने कितने का प्रॉपर्टी दिया, 120 का. ये मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी का. ये मार्केट इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स वाज 100 करोड़. बुक वैल्यू कितना था ए के बुक्स में, 100, बी के बुक्स में 50. तो ए क्या करेगा, ए 10 करोड़ का प्रॉफिट उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक करेगा, और बी कितना बुक करेगा, 40 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लेगा स्टैंड अलोन में.
बट ए जब कंसोलिडेटेड बनाएगा तो ये 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें उसका जो शेयर है वो एलिमिनेट करेगा। ए गेन इन, अच्छा डायरेक्ट कंसोलिडेटेड पूछा है, कंसोलिडेटेड में क्या किया, एज शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बी, बी के शेयर असेट्स कितने हैं 120, उसमें उसका शेयर 50% है। एज शेयर इन द असेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए 110 मत ले, तुमने असेट्स 110 पे कंट्रीब्यूट किया ना, लेकिन दिखाया 100 पे। देखो मैं तुमको अगर समझा, टोटल असेट्स कितने जॉइंट वेंचर के, एक 2 मिनट रुको, टोटल असेट्स कितने जॉइंट वेंचर के 120 प्लस 110, देखो 120, ये जो आईसीआई का आंसर है ना, मैं आपको 2 मिनट में लाके दिखाता हूं, जस्ट अ सेकंड, बोलो 230 में 50% करो, 115 उसका शेयर इन असेट्स है, किसका, ए का शेयर इन असेट्स कितना है 115, उसमें तुमको प्रॉफिट कितना है, तुमने खुद प्रॉफिट बुक किया 10 करोड़ का, 10 करोड़ में तुम्हारा शेयर कितना है 50%, तो वो 5 का एलिमिनेट करना पड़ेगा तुमको, बेसिकली 110 के ही असेट्स दिखाने हैं, वही तो 110 है, 60 प्लस 50, यहां पर उन्होंने गेन रिकॉर्ड किया, ए ने कितना प्रॉफिट बुक किया है 10 का प्रॉफिट बुक किया, वो सिर्फ उन्होंने कैलकुलेट किया, ए के स्टैंड अलोन में 10 का प्रॉफिट बुक होगा, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ए असेट कैसे दिखाएगा, ए विल शो द असेट्स एट दोनों का टोटल माइनस उसका जो शेयर आता है माइनस हिज प्रोपोर्शनेट, माइनस वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट करना। इन सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको इधर क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं था, गेन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड फुल गेन इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, दैट्स इट, बाकी डिस्क्लोजर को नहीं पढ़ा तो भी चलता। That's it on the AS27. So we have done amalgamation and consolidation का 3 separate centers. These are the 4 lectures that we did. I had told you very specifically I'll not be able to cover everything. So हमने इतना cover up कर लिया, बाकी chapters हमने detail में regular lectures में किए ही है। Free वाला public, thank you, इतना आपको free में मिल गया है। Thank you. All the best for your exams. Bye bye.